So till then, till your friends are, since your many of your friends are joining. So you can do one thing: just write your year and your branch in the chat box, so that we can get a better understanding that which year and which branch you are from. Just write your year and your branch in the chat box, so that we can I can get a better understanding about it. This is from first year. Okay. Uh, Tarseem from first year chemical. Cool. Okay. Sanchit from IT first year. Akash from ski EC first year. Okay. Most of you looks like you are from first year, either EC, IT, or chemical, instrument and control engineering. Okay. Okay. Sounds good. Sounds good. Sounds good for me. And so most of you are from new attendees. You can write your year and your branch in the chat box, just like your friends are writing. First year ICE. Okay. IC is I think that's the same, instrumental and control engineering. Okay. So just give me 1 second. Till then, write. Others, please write. Also, guys, it would be great if you can write what you know, like what all languages you have, currently. Like you have just started with C, C++, or you have been working with Java. Because few people are, if you are from ICSC, you must be knowing Java. So that's the thing. Like what language you know, like C, C++. Also, till then, uh, this is my LinkedIn ID. Okay. Started with C. Okay. This is my LinkedIn ID. We will connect. We'll connect on LinkedIn. Okay. It would be great if we can connect on LinkedIn. So most of you know C, right? Okay. C. Yeah, definitely. In my first year, also, before starting with more on this session, what you mean to start? Like, what do you think? I should speak in complete English or a mixture of both? Anybody who is who only understand English, so you can write in the chat box, like English plus Hindi, or only Hindi, or complete English. What do you want? English only. People are saying only English. Both mix. So if there is someone not comfortable with Hindi, he can DM me in the chat. If he is not at all comfortable with Hindi, okay, because I prefer to speak in a mixture of both, in either ways. So that's the thing. Yeah. Okay. There are a few more responses. Mix. Okay. So I think most of you are comfortable with Hindi and English. ठीक है. So guys, start करते हैं. We are here today because of this reason: introduction to data structure and algorithms. Since most of you are comfortable with C, you have just started with C or you are working with C. So ये हो सकता है कि सी में आप लोगों ने मैक्सिमम जो है फाइल हैंडलिंग तक पढ़ा होगा. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज समथिंग वेरी न्यू फॉर यू ऑल. ठीक है. ये बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है. और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स बेसिकली सी और सी प्लस प्लस में आता है. ठीक है. इट्स नॉट इन सी. सी में आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स नहीं मिलेगा. सो इट्स कंप्लीटली टू सी. So what you want me to drive the session for? You want me to go into data structure algorithms, or you want me to go into roadmap to coding? Like I'll explain you everything. Like क्योंकि C और C++ की भी बाहर बहुत बड़ी दुनिया है. That is app development, web development, machine learning, artificial intelligence. So you want me to go there, or you want me to stick to data structure algorithms? Because after seeing the responses that you only know C, so it would be hard for me
and you as well. It would be hard for you, of course, कि आप लोग data set algorithm something. So what do you want me to start with? Like, should I cover the introduction to data set algorithm, or should I go to this stuff? Let me show you the PPT of both the things. Let me go through the PPT of both. So these are the things we'll be going to study in data structure and algorithm. Okay, if you are comfortable with studying all those things, arrays, stacks, queues, okay, graphs, because that I'll give you an overview of all these topics. So these are the topics which we will going to study. So if you don't know C++, then it would be very difficult for you to understand. So if you want, I can switch to roadmap to coding. We can switch to roadmap to coding if you want. So roadmap to coding, basically it will cover web development, app development, everything you want to know about app, web development, everything. Databases and Internet of Things, everything, artificial intelligence, everything, right from scratch. So what do you want, guys? Please respond in the chat box. What you want me to roadmap for coding? Okay, roadmap. Okay, roadmap to coding. Yeah. Some people are saying DSA. So if you are saying DSA, I would understand that you already know C++, because if you don't know C++, then it would be very difficult for me to explain and you to grasp the DSA concepts. Obviously, we can have another session on DSA. Don't worry about that. We'll have another session on DSA in the coming week. Don't worry. So I think most of the people are saying roadmap. So Arpit and Jay, sorry for this time, buddy, but we will go for roadmap to coding. The complete, I'll give you the complete overview of all the picture. Okay, and then we'll start with the then also I will cover the data structure parts in the after the roadmap. Okay, don't worry. I will cover the few parts, and you can obviously ask me the doubts of DSA. So okay, on public demand, we are starting with the roadmap to coding. So before starting, sir, we had seen the first time and now in the second time they are teaching DSA. Great. We share both the PPTs. Yeah, definitely. I'll share with the organizing team the PPTs and they will share with you. Okay, don't worry. Or else in the end of the session, I'll share in the drive link of both the PPT. Okay, don't worry. So just relax and enjoy the session. Okay. ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं. पहला द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई यू वांट टू लर्न कोडिंग. मतलब आप लोगों ने सीएसई और व्हाई यू आर हियर इन दिस सेशन एंड व्हाई यू वांट टू लर्न कोडिंग. कोडिंग आपको सीखनी ही क्यों है? With me, I'll give my honest answer first, and then you can answer in the chat box, or you can get. पहली बात तो मैं बहुत कोई I'm not that 27, 28 या 30 साल का कोई आदमी नहीं हूँ. ठीक है, I am just recently graduate from IIT धनबाद, and मैं इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दे चुका हूँ. मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, तो यू कैन गो एंड वॉच. ठीक है, तो यू कैन टॉक मी लाइक वी आर फ्रेंड्स. ठीक है, एंड इसमें देखो, तो मैं अपना एक सीधा रीजन बता देता हूँ, क्योंकि आई वांट टू अर्न मनी एंड आईटी इंडस्ट्री हैज मनी. ऑल्सो माय पैशन इज इन कोडिंग. कम से कम 4 साल से तो है. ठीक है, तो यही है दैट दैट ड्राइव्स मी टू लर्न कोडिंग. ठीक है, तो व्हाट्स योर रीजन टू कोड? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. Like you are open to answer in the chat box. What's your reason to learn coding? Okay, to get a job. Two reasons. It interests me. Okay. For placement, correct. To get a job, definitely. That's what my reason is. I have passion in coding. I want to earn money. That's all. I want to become software developer. Okay. Passion plus job, correct. Okay. Interest the job. Okay. Nobody is here to research. Nobody for research or kind of thing. यार एनआईटी से हो, रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है? रिसर्च पीपल. जॉब 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 जॉब. मेरा भी रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं. ठीक है यार, सही है, कूल है.
Okay, you will say. Also, I really like to open sourcing, like the open sourcing. सही, ठीक है. तो ठीक है, sounds good for me. ठीक है. So I got your reason that most of you want the job, and obviously you are interested in getting a job and interested in coding as well. ठीक है. So what are the paths? या फिर कोडिंग के आपने अभी तो केवल सी पढ़ा है. So what are the paths from now? Like सी के बाद क्या? तो सी के बाद क्या? सी के बाद क्या होता है? देखो, दो रास्ते आते हैं हमारे सामने. वंस वी आर डन विद द फर्स्ट ईयर, ठीक है, जब फर्स्ट ईयर्स में मैं था तो मेरे सामने भी दो रास्ते थे. एंड दैट आई विल टेल यू व्हाट आर दोस टू वेज. पहला होता है डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम, ठीक है, और दूसरा रास्ता होता है डेवलपमेंट. तो फर्स्ट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो नंबर टर्म से बोला जाता है, या जिस सेशन का नाम था इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. ठीक है, और दूसरा रास्ता आता है दिस थिंग, वर्किंग ऑन फ्यूचर. ठीक है. So we have two ways from now. After learning C, you have two ways: either to go for CP, competitive programming, or go for dev, that is development. In case of development, what all languages you know to for CP? CP के लिए आपको क्या क्या जाना होगा? C++ और Java और Python. मैं और बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज इंग्लिश वाला और, ठीक है, दैट इज OR. ठीक है. तो पाइथन, C++, जावा. डेव के लिए, डेव के भी तीन चार ऑप्शन है: वेब डेव, ऐप डेव, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट के साथ ही, मतलब नॉट इन केस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ये थोड़ा अलग है, दैट इज मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस और AI और ऑल दो स्टफ. और एक आता है साइबर सिक्योरिटी. तो ये रास्ते आते हैं हमारे सामने दो. जब हम सी पढ़ लेते हैं उसके बाद वी हैव दीस टू वेज टू चूज फ्रॉम. अब ये दो रास्ते अलग अलग नहीं है. ये रास्ते, ये दोनों रास्ते एक ही जगह ले जाते हैं हमें, दैट इज जॉब. दोनों रास्ते एक ही जगह ले जाते हैं, एंड अप एक ही जगह करेंगे, जॉब. ठीक है. तो आपको दोनों रास्तों से ही थोड़ा थोड़ा होके जाना है. ऐसा नहीं है कि आप, मतलब मेरा क्या कॉम्बिनेशन है मैं वो बता देता हूँ पहले. व्हाट्स माय कॉम्बिनेशन फॉर गेटिंग अ जॉब? माय कॉम्बिनेशन वाज C++, एंड उसके बाद मुझे थोड़ी पाइथन करना पड़ा फॉर प्रोजेक्ट्स एंड डेटा साइंस. ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के लिए वी नीड टू नो, या ये सभी है ना लैंग्वेजेस है. जैसे आप सी पढ़ रहे हो ना, वैसा ही ये C++, जावा एंड पाइथन आर लैंग्वेजेस. ठीक है. और दीज आर टेक्नोलॉजीज, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब इनके इम्प्लीमेंटेशन है. मतलब आप, जैसे आपने सी सीखा, अब उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी ना सीखा. वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब आप C++ सीख लोगे तो आपको C++ और पाइथन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में मिलेगा. IoT, इन सब में फाइंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट ऑल लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड. केवल C++, जावा, पाइथन इनसे नहीं होता है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस चाहिए होती है. सो विल सी ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द रोड मैप्स इन डिटेल. ठीक है. यहाँ पे ये अलग अलग पाथ है. आइदर यू कैन चूज वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी. इनमें से कोई एक ही चुनना. ठीक है. प्रेफरेबली इनमें से एक ही चुनना. बट सिंस वी आर ऑन इन लॉकडाउन, ठीक है, हम लोग घर पर हैं, वी हैव एक्स्ट्रा टाइम, सो आप दो भी लेके चल सकते हो. बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, एंड आई विल, दिस इज माय पर्सनल सजेशन, दैट टेक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेरी सीरियसली एंड ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड ऑन सेकंड प्रायोरिटी टेक द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब क्या? कुछ साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स है, कोड शेफ है, कोडिंग निंजास है, गीक्स फॉर गीक्स है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं. मतलब कुल मिला के मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें कोडिंग के पर्पज से सॉल्व करना होता है. दैट्स सिंपल. इन लेमन टर्म्स में इसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं. ठीक है. डेव को, डेव इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट या फिर जिसको कुछ डेवलप करना. वेब में हम वेबसाइट डेवलप करते हैं. ऐप डेवलपमेंट में हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं. एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो गया, iOS एप्लीकेशन हो गया, ऑल दिस. मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में हम मॉडल्स बनाते हैं. जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब में, आपने एक वीडियो सर्च करी, उसके बाद सारी वीडियोस वो रिकमेंडेड वीडियोस आ जाती है. तो दैट इज फॉर एग्जांपल ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम. तो वो सिस्टम कैसे बनता है?
या फिर आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करी होगी, किसी ने नोटिस किया है ऐसा कि आपने चैट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने नोटिस किया नहीं किया कि होता क्या है। मैंने एक बार मैं कुछ सर्च कर रहा था ऑनलाइन, मैंने जैसे सर्च किया फर्नीचर, उसके बाद ट्रू कॉलर में नीचे मुझे ऐड आने लग गया फर्नीचर का। मैं अमेजोन जैसे मैंने खोला, मुझे फर्नीचर के वो आने लग गए, फर्नीचर की ये वाला फंड मतलब फर्नीचर वाले जो होते हैं ना वो सब ऊपर आने लग गया। तो किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मैंने तो बहुत किया है देखो। और किसी ने कोई है जिसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना आप लोगों ने भी ऐसा? सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ दीज थिंग्स ना। हाँ, ये बहुत बार होता है। और एक और चीज आपने देखी होगी, सब लोग बोलते हैं गूगल सब कुछ सुनता है। तो एक बार मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो आई वाज इन अ क्लोज रूम, ठीक है। मैं एक क्लोज रूम में था और मैं हम दो लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे थे कि यार हमें ना हार्ड डिस्क लेनी है, ठीक है, हमें हार्ड डिस्क चाहिए, हम हार्ड डिस्क के यूसेज डिस्कस कर रहे थे, ये सब डिस्कस कर रहे थे। एंड गूगल वॉज ओपन, ठीक है, मेरा लैपटॉप खुला था, मेरा मोबाइल ओपन था, ठीक है, स्विच ऑफ नहीं था, मेरा लैपटॉप भी ओपन था, मेरा मोबाइल भी ओपन था। फिर जब मैंने उसको अमेजोन खोला और मैंने कुछ ऐसे न्यूज वाली और ऐसी साइट्स खोली, तो उसमें जो साइट्स में ऐड आ रहे थे ना, वो उसके आ रहे थे हार्ड डिस्क के, दैट सीनेट के हार्ड डिस्क, सीगेट की और वेस्टर्न डिजिटल, इन सब के हार्ड डिस्क के ऐड आने लगे। तो दैट्स व्हाट इज स्पीच रिकॉग्निशन टू मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज और बहुत बवाल चीज है, ठीक है। दैट्स समथिंग वेरी गुड, ठीक है। तो दैट्स कम्स अंडर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। अब आपने एक चीज देखी होगी, जैसे अमेजोन का एलेक्सा है, ठीक है, आपने बोला कि एलेक्सा टर्न ऑन योर फैन, ठीक है, टर्न ऑन माय फैन, टर्न टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है, या प्ले दिस म्यूजिक। तो वो कैसे होता है? दैट्स जो डिवाइस को जब कनेक्ट करता है, द थिंग दैट कनेक्ट्स डिवाइस टू योर कोड, डिवाइस और कोड का जब कनेक्शन होता है, दैट कम्स अंडर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। इसकी एक और फील्ड होती है आईओटी, या अलग एक सेपरेट ब्रांच ही है पूरी आईओटी। तो यू इट इफ यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, देन यू कैन आल्सो गो फॉर आईओटी। तो आईओटी इज समथिंग दैट शुड एक्साइट यू। साइबर सिक्योरिटी आप सब जानते हो, वो कोडर हैट पहन के और वो यू कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। दैट्स बस हमें वही साइबर सिक्योरिटी आता है, रशिया भी कहीं कंप्यूटर में बैठा हुआ, बस वो दैट्स साइबर सिक्योरिटी फॉर अस। बट साइबर सिक्योरिटी उससे बहुत ज्यादा है। डीआरडीओ, बहुत सारी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर आईटी सॉल्यूशंस के लिए इनको हायर करती हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इंडिया में स्कोप थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन अब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। आईओटी मैंने बता ही दिया, ऐप डेवलपमेंट आपने देख ही लिया, प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर, इस पे जो एप्स आते हैं, एप्लीकेशन, आपके पास एंड्रॉइड एंड्रॉइड और वो होगा, तो उसमें जितने भी एप्स हैं दैट यू कैन आल्सो डेवलप। वेबसाइट, जैसे हम वेबसाइट डेवलप कर ही सकते हैं, कैसी वेबसाइट हो, जोमेटो, स्विगी, जोमेटो स्विगी की वेबसाइट नहीं है, कोई भी amazon.com, flipkart.in, ये सारी वेबसाइट्स, ठीक है। तो एक ओवरव्यू लग गया कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब हम है ना इसके थोड़ा डेप्थ में जाके देखेंगे। अब सीपी के लिए, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए, यू कैन गो फॉर सी प्लस प्लस, या तो सी प्लस प्लस सीख लो, या फिर जावा, अगर जावा आती है पहले से तो, ठीक है। बट आई वुड प्रेफर यू टू गो विद सी प्लस प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर कोड जो है ऑनलाइन और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ज्यादातर लोग सी प्लस प्लस कोड करते हैं। सो यू विल फाइंड योर सॉल्यूशन इजी। अगर तुम्हें आप लोगों को क्वेश्चन करा, नहीं चमका, ठीक है, अगर नहीं हुआ, तो यू विल फाइंड द सॉल्यूशन इजी, मतलब तुम्हें आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा, सी प्लस प्लस का कोड मिल जाएगा, यू फाइंड दैट। और तुम्हारे आपके कोर्स करिकुलम में भी सी प्लस प्लस आएगी। पाइथन और जावा बहुत कम चांसेस है कि एनआईटीज में आएगी, ठीक है। सी प्लस प्लस जरूर आएगी, ठीक है। तो ये है रीजन, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आर पीपीटी। मैंने हम चालू करते हैं वेब डेवलपमेंट से। व्हाट इज द डेवलपमेंट? वेबसाइट बनाना, किसके लिए भी, मोबाइल फ्रेंडली, लैपटॉप फ्रेंडली, आईपैड फैमिली फ्रेंडली, सॉरी फ्रेंडली, है ना, इन सब सारे प्लेटफॉर्म के लिए एक वेबसाइट बनाना, डेवलपिंग वेबसाइट, दैट्स अंडर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट आर द लैंग्वेजेस वी नीड टू नो, और वेबसाइट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे सपोज करो आई ओपन सम वेबसाइट, लेट मी ओपन दिस यूट्यूब ओनली। इसमें आप देखोगे, सो दिस दिस इज फ्रंट एंड, ठीक है, दिस इज फ्रंट एंड, दिस इज फ्रंट एंड, जो ये सब कुछ आपको दिख रहा है, दिस कम्स अंडर फ्रंट एंड। जैसे ये लोगो है यूट्यूब का, इसके साथ ये है, ठीक है, और इसके बाद ये सारे आ रहे हैं, ये चेक बॉक्स ऐसा बॉक्स बन के आ रहा है। सो ऑल दीज कम्स अंडर फ्रंट एंड। जो जो हमें दिख पा रहा है, द थिंग दैट यूजर कैन सी, ऑल कम्स अंडर फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड से डेवलप करते हैं, ठीक है।
तो और इसके भी जो पीछे है जो काम कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, दैट दैट इज बैकएंड। तो दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं वेबसाइट में, फ्रंट एंड और बैक एंड। और दो ही पोजीशन के लिए हायर होते हैं, बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर। और फुल स्टैक इंजीनियर, जिनको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों आते हैं, उनको बोलते हैं फुल स्टैक। फुल स्टैक वेबसाइट और फुल स्टैक इंजीनियर। ठीक है, वो कोई कुछ पूछ रहा है? सॉरी। ठीक है। हम्म। हाँ, तो हम पे फ्रंट एंड पे, तो फ्रंट एंड जो आप देखते हो, यूजर जो भी देखता है, दैट इज फ्रंट एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड के लिए व्हाट आर टेक्नोलॉजीज वी यूज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मोस्टली यही तीन लैंग्वेजेस वी यूज फॉर फ्रंट एंड। और आपको तीनों सीखनी पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस। एक कोई सीखने का कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, एक सेकंड यार, एक सेकंड। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक लैंग्वेज सीख ली, नहीं, यू हैव टू लर्न तीनों। आपको तीनों सीखनी पड़ेगी। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि व्हाट लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर व्हाट। लेट्स से मैं एक बॉडी का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। पार्डन माय ड्राइंग, ड्राइंग को छोड़ देना मेरी। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसमें जो स्केलेटन वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड HTML। वो HTML से बना है। दैट्स मतलब आई एम मेकिंग, मैं बॉडी और वेबसाइट को सिमिलर मानूं। तो इन केस ऑफ बॉडी, द बेसिक स्ट्रक्चर और द skeleton पार्ट इज मेड यूजिंग HTML। दैट्स व्हाट आई रिकॉल फ्रॉम। ठीक है, skeleton इससे बनता है। Now, let's say the hairs, the lenses, the watches, or the skin and the muscles, everything is a part of CSS. We call it as CSS, cascading style sheet. CSS, styling of the body. Okay. Now, the movement, ठीक है, हाथ इधर करना, लिखना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, all those are part of functions, कुछ फंक्शन करना, that comes under JavaScript। वो JavaScript का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप समझ ही गए कि एक वेबसाइट बनाने के लिए तीनों चीजें जरूरी है। स्केलेटन, बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा पहले, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग होगी, कलर्स वगैरह फिल होंगे, ब्राइट कलर्स। जैसे हम एक बार मैं आपको यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, यूट्यूब में मैं इसके लिए ना, अपनी कॉलेज की एक वेबसाइट है, एक फेस्ट की वेबसाइट थी, तो मैं वो सबसे बेस्ट रहती है इसके एग्जांपल के लिए। आई विल शो यू दैट। ये वेबसाइट डेवलपमेंट में आए, बेसिकली हम करते क्या हैं, टाइम। हम्म। ठीक है, एक बार यूट्यूब के एग्जांपल से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये जो है इसमें रेड कलर हो रहा है, ठीक है, ये होम, ये आइकन, ऑल दीज आइकन्स, है ना, ये सब कुछ वो उसका पार्ट है, CSS का। ठीक है, ये सब कुछ CSS पार्ट, ये कलर आ रहे हैं, जितने भी ब्राइट कलर दिख रहे हैं आपको, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ CSS। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो ये वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये नेम बार बना हुआ है, ठीक है, एंड एवरीथिंग, ये जो है, ये सब कुछ, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ HTML। पहले HTML का कोड लिखा होगा, देन द स्टाइलिंग इज डन बाय CSS। हाँ। हाँ, अब इस साइट में आप देखो, साइट में आप देखोगे, तो यू विल फाइंड ये जो हो रहा है ना, जैसे ये दिस इज मूविंग, ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट, ये बार बार दिस इज कॉल्ड टाइप राइटर। ठीक है, वेब डेवलपमेंट करोगे तो यू विल फाइंड दिस वेरी इजी। इसका छोटा सा कोड होता है, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड, कुछ ये दिस इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज डन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। CSS से भी हो सकता है, बट मोस्टली वी डू दिस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर मैं मेरे सबको सोने सोने वे। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, और इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन रेज योर हैंड्स।
तो दिस इज द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट से होता है। तो दिस इज डन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, है ना। एंड ये सब कुछ जो ये आपको इतना अच्छे ब्राइट कलर्स दिख रहे हैं, ये इमेज दिख रही है, दिस इज डन यूजिंग सीएसएस। इमेज आएगी वो एचटीएमएल से आएगी, बट द कलरिंग पार्ट, ये कलर जितना हो रहा है, ऑल दिस डन यूजिंग सीएसएस, ठीक है। अब इसके पीछे एक बैकएंड होता है, जैसे मैंने अपने यूट्यूब वाला में यहाँ पे मेरा लॉगिन हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पे मेरे अपने आईडी से, ईमेल आईडी से लॉगिन हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये लॉगिन हो रहा है, तो दिस इज स्टोर्ड, दिस विल बी स्टोर्ड इन सम डेटाबेस, ये कहीं डेटा स्टोर होगा, मेरा आईडी और पासवर्ड कहीं जाके स्टोर हुआ होगा, ठीक है। और वो जो डेटा है, जब मैं लॉगिन करता हूँ अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से, तो जो वो डेटा है वो वहां से डेटाबेस से फैच होता है ना, और वो आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच का जो पार्ट है, जो रोल प्ले करता है, दैट रोल इज प्लेड बाय बैकएंड, ठीक है, वो बैकएंड करता है। विल नाउ मूव टू बैकएंड। बैकएंड क्या है? बैकएंड के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ता है? बैकएंड के लिए ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं, Node.js, Django, PHP, Ruby on Rails. I have worked in PHP and Node.js a bit. Okay. Django and Ruby on Rails I have never worked in. ठीक है. So you can choose anyone. कोई भी एक चूज कर लो and you can do that. अगर किसी को कुछ पूछना है, they can ask in the chat box or they can raise their hand. I will unmute them. So PHP और Node.js, ये दो लैंग्वेजेस जिसमें मैंने थोड़ा काम किया है, तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन कैरी ऑन। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्रेफर गो विद Node.js। यहाँ पे तो आपको तीनों ही पढ़नी पड़ेंगी। जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों पढ़े, और Node.js बैकएंड के लिए Node.js कर लें। ये दे विल बिकम फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। एंड टू एंड पूरी वेबसाइट वो बना दें, ठीक है। Guys, if you have any doubt in the web development section, you can ask in the chat box. Okay. We are moving to next app development. Next is app development. So, any doubts, guys, in web development? Anyone? Resources, I'll tell you in the last. Mostly, दो तीन resources common है. जैसे W3 schools है, ठीक है, that's a free website. I'll show you. कोई कुछ पूछ रहा है, ideally when should we start making projects? जब स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी स्टार्ट कर दो दैट्स बेटर, ठीक है। पहले डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, C++ साथ में पढ़ो, देन गो फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रहो। और वेब डेवलपमेंट में कुछ लोग क्या करते हैं, पहले अब जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो फर्स्ट ईयर ये ध्यान रखना, बस पर्सनल एडवाइस, कि मैं भी ये गलती कर चुका हूँ कि पहले मैं सोचता था कि पहले सारी लैंग्वेज सीख लेता हूँ, I should study C, पहले मैं पूरी HTML, CSS, JavaScript ये सब सीख लेता हूँ, then I would go for projects। नहीं, गलत अप्रोच है। एक पहले स्टार्ट बेसिक प्रोजेक्ट बनाने की तरफ, मतलब एक प्रोजेक्ट सोच लो कि मुझे ये पोर्टफोलियो अपनी वेबसाइट है, या मुझे कोई एक वेबसाइट बनानी है, पोर्टल बनाना है। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बैक ट्रैक करो, मतलब उसको बैक ट्रैक करो कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। आई वांट टू लर्न HTML, CSS, JavaScript, ऐसे आओ। if you go for कि मैं HTML, CSS, JavaScript सीख लेता हूँ, Node.js सीख लेता हूँ, then I will make project, वो कभी नहीं होने वाला। या तो उसके बाद तुम इंटर्न कर लो, that's an option। बट बेटर क्या होता है कि अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाना है फर्स्ट ईयर में, तो क्या करो, या फर्स्ट या सेकंड ईयर के अभी जैसे समर वाले में तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, सबसे बेस्ट तो क्या है, दो तीन लैंग्वेज सीख लो, HTML, CSS, JavaScript सीख लो, और इंटर्नशाला पे जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। बेस्ट इंटर्नशिप लग जाएगी। अगर तुम्हें स्किल नहीं भी आती तो भी मेंशन कर दो, लर्न दैट स्किल। अगर इंटर्नशिप लग जाए तो लर्न दैट और फिर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। आती हुई अपॉर्चुनिटी को कभी मना नहीं करना, सीखो, अपॉर्चुनिटी मिली है, लैंग्वेज सीखो, जाओ। वो प्रोजेक्ट बनाने का सबसे बेस्ट टाइम है जब तुम स्टार्ट करोगे, तभी बेस्ट टाइम है। जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करो तब से प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। गो विद दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं एक बार W3 schools, दिस इज द साइट W3 schools, ठीक है। और यहाँ से आप HTML, CSS, JavaScript और जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है वो सीख सकते हैं। बट ये है थोड़ा टेक्स्ट वाला, मतलब आई एम दैट टाइप ऑफ गाय जो मुझे वीडियोस ज्यादा पसंद थी, ट्यूटोरियल्स। आई यूज्ड टू प्रेफर ट्यूटोरियल्स ओवर टेक्स्ट कंटेंट। मैं टेक्स्ट को केवल रेफर करता था, अगर मुझे कोई डाउट आता था देन आई वुड रेफर टेक्स्ट।
So you can go for Coding Ninja's web development full stack course. ठीक है, it's good. You can do that. और भी बाकी courses हैं, बाकी websites हैं, you can go for that. और रेफर करने के लिए I would prefer W3 Schools. इसमें लर्न HTML वाला टास्क है और इसमें सब कुछ है. बट अगेन इट्स गुड टू गो विद वीडियोस इफ यू आर दैट टाइप ऑफ गाय. दो तरह के लोग होते हैं जिनको टेक्स्ट पढ़ना पसंद होता है और कुछ मेरी तरह जिनको वीडियो देखना पसंद होता है. इट डिपेंड्स अपॉन यू कैसा आपको करना है. तो वी आर मूविंग ऑन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में क्या होता है? मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल के ऐप्स बनाना जो प्ले स्टोर में डलेंगे, iOS स्टोर में डलेंगे, ऑल दोस ऐप्स, एंड्रॉइड ऐप्स या फिर iOS ऐप्स. What all languages we require? Java, Swift और React Native. I would prefer you to, अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बना रहे हो जैसे iOS और Android में साथ साथ चले, then go for Swift. और React is super hot currently मार्केट में सबसे ज्यादा कोई चल रही है तो that is React. ठीक है, learn React, उससे वेब ऐप बन जाते हैं. ठीक है, तो learn React. Kotlin, you can go for Kotlin if you learn Python. अगर आपको Python आती है, then you can go for Kotlin. Dart, I don't prefer Dart. क्या आपको करना है, you can Google Dart. But Kotlin, if you learn, if you have, I will share the PPT. That's don't worry, I'll share the PPT. सेशन के एंड होते हुए I'll share the link of the PPT while uploading in the drive. Don't worry. और ऑर्गेनाइजिंग टीम से ही बोलूंगा कि PPT शेयर कर दो. तो जावा, स्विफ्ट और रिएक्ट. तो आई वुड प्रेफर यू टू गो विद रिएक्ट. ठीक है, रिएक्ट एंड स्विफ्ट और जावा इफ यू वांट. ठीक है, अल्टीमेटली यू हैव टू कंबाइन विद एंड्रॉइड स्टूडियो. देयर इज एन सॉफ्टवेयर कॉल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो. ठीक है, यू हैव टू गो विद दैट. आप एक लैंग्वेज पकड़ लो पहले, देन यू कैन गो विद द सॉफ्टवेयर जिससे आप ऐप क्रिएट करोगे. ठीक है, आई वुड प्रेफर टू गो विद रिएक्ट. अगर मुझसे कोई बोलता है अभी वेब डेवलपमेंट सीखना है तो ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो आई वुड गो विद रिएक्ट. Moving on to databases. So what are databases? Anyone having any idea? What are databases? किसी को कुछ idea? What are databases in the chat box? Flutter, yes, you can go with Flutter. Okay. मैं common resources बता रहा हूँ जो generally mostly जो industry में follow होता है और जो लोग करते हैं. Data query system. Database is something different. और थोड़ा कुछ डेटाबेस में किसी को पता हो? व्हाट आर डेटाबेसेस? व्हाट इज SQL is again SQL is a language to implement or to play with the data. टाइप बना रहे हो भाई डेटाबेस के. आई एम आस्किंग व्हाट इज डेटाबेस. डेटाबेस है क्या? फिर MongoDB. भाई मैं पूछ रहा हूँ डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस. जैसे तुमने बोला व्हाट इज ऐप डेवलपमेंट, अगर तुमसे कुछ पूछे तो ये तो ना बोलोगे HTML. अब तुम सही आंसर दे रहे हो. टू स्टोर सम डेटा, टू प्ले विद डेटा, टू मैनिपुलेट डेटा, टू बस. ब्लॉग्स बहुत छोटा एग्जांपल है ना. मतलब डेटा इज मतलब बहुत इनफाइनाइट है. स्टोरेज ऑफ डेटा, हाँ एग्जैक्टली, स्टोरेज, कलेक्शन, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर डेटाबेस. ठीक है, और पता नहीं तुम लोग वीडियोस देखते हो नहीं देखते हो यूट्यूब वाली. उसमें क्या होता है, मतलब जैसे तुम यूट्यूब पे भी सर्च करोगे डेटाबेस सिस्टम्स, फिर डेटाबेस सर्च करोगे डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट या डेटाबेस गूगल या ओरेकल इज वेरी बिग कंपनी. अगर तुम लोग ये सर्च करते हो तो यू विल फाइंड कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने अंडर वाटर डेटाबेस अपना पूरा जो डेटा है वो अंडर वाटर उसने सेव कर रखा है, या ओरेकल ने सेव कर रखा है, या गूगल ने सेव कर रखा है. सो यू विल फाइंड दैट उनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं. हाँ हाँ, बहुत बहुत सही आती है. तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखना डेटाबेसेस, इट विल एक्साइट यू. तो डेटाबेसेस आर स्टोरिंग ऑल टाइप ऑफ डेटा. डेटा कुछ भी हो सकता है, स्पीच की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है. एंड स्टोरिंग दैट डेटा, प्लेइंग विद दैट डेटा, मैनिपुलेटिंग दैट डेटा, मेकिंग यूज ऑफ दैट डेटा इज कम्स अंडर SQL and NoSQL. There are two languages, SQL and NoSQL or MongoDB. That you can go with. डेटाबेस पढ़ना सबको इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट कम्स अंडर आपके प्लेसमेंट और इंटर्नशिप. आपके कोर्स करिकुलम में भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो आपके इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में भी आएगा. ठीक है,
So it's necessary for us to understand and to go with database management system. We don't have any other choice. ठीक है? हमें database system management system पढ़ना ही होगा. So I prefer SQL or MongoDB. Yeah, I prefer SQL. But again, it's up to you how you want to learn. I've told you the resources, the code, you can buy a course or you can go with WCC. There are many other sites as well. Next is Internet of Things. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मैं बेस्ट एग्जांपल दे चुका हूँ. एलेक्सा हो गया, बहुत सारे आर्डिनो से आपने ऑटोमेशन कार, बेसिक कार बना दी जो लाइन फॉलोइंग कार्स होती है. ठीक है, अब मतलब मैं अपने जब कॉलेज में था, मैं सेकंड ईयर में जब था, सेकंड और थर्ड ईयर में, तो रोबोटिक्स का कंपटीशन था. तब हमने एक रोबोट बनाया था, लाइन पाथ फॉलोइंग रोबोट, ऐसा कुछ नाम था उसका. तो वो एक लाइन बना दी थी, ग्राउंड पे एक लाइन बनी हुई है, और उसको उस आर्डिनो से यूज करके मैंने कोड किया था केवल. आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन मच आईओटी वाले थिंग. ठीक है, मैं मशीन वाले पार्ट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, बस मैं कोडिंग वाले पार्ट में था. तो दैट्स व्हाट आईओटी इज. और इसके लिए ये सारी लैंग्वेजेस यू कैन यूज फॉर आईओटी. सी, जावा और पाइथन. these are 3 languages. ठीक है, और स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होती है दैट डिपेंड्स अपॉन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, और आपकी यूसेज पे डिपेंड करती है. But mostly people prefer these languages. Start with IoT. So next is cyber security. Cyber security ऐसी चीज है तो सबको बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, बट अगेन दिक्कत ये होती है कि हम रेज्यूमे में कैसे लिखेंगे कि हमने साइट हैक करी, या फिर क्या लिखेंगे रेज्यूमे में, एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. ठीक है, ये सारी दिक्कतें आई थी साइबर सिक्योरिटी में. स्कोप भी थोड़ा इंडिया में थोड़ा सा कम है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन. ठीक है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा स्कोप कम है एज फार एज आई हैव सीन. ठीक है, इट्स अगेन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव. तो बट यू कैन गो विद साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग. ये लैंग्वेजेस होती है पाइथन और C++ दैट यू नीड टू नो. एंड मतलब ये लैंग्वेज जानने से ऐसा नहीं है मैं अब हैकिंग कर लूंगा, नहीं. अलग सॉफ्टवेयर्स होंगे, अलग कोर्स होता है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, बट दीज आर द बेसिक लैंग्वेजेस. जैसे मशीन लर्निंग में पाइथन यूज होती है, आर यूज होती है, हम देखेंगे आगे. उसका अगला यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें आर और पाइथन 2 ही लैंग्वेजेस हैं. तो ऐसा नहीं है कि केवल आर और पाइथन से ही काम चलेगा. ठीक है, मतलब कि मेरे को पाइथन आती है तो मेरे को मशीन लर्निंग आती है, ये ऐसे वर्क नहीं करता है. ठीक है, ऑल्दो अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको वेब डेवलपमेंट आती है, दैट यू कैन गारंटी. बट मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, IoT और ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, जावा भी, ऐप डेवलपमेंट भी कह सकता हूँ, ये कुछ ऐसी फील्ड्स है जहाँ पे केवल लैंग्वेज आ जाने से वो नहीं होता, बिकॉज दे आर वेरी कॉमन लैंग्वेजेस. देख रहे हो, जावा इसमें भी है, जावा ऐप डेवलपमेंट भी थी, तो ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा के अलग लाइब्रेरीज यूज होंगी, मॉड्यूल्स यूज होंगे. ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग यूज होंगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन अलग टाइप की यूज होगी, पाइथन में और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, है ना. तो वी नीड टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स. बहुत सारी टेक्निक्स है, लाइब्रेरीज है, ठीक है, एल्गोरिथम्स है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये फर्क है इन सब में. तो बस यही तक था कि ये सब करो. ठीक है, build your idea and start earning money if you want. If you have that spark कि मेरे को I want to develop my own startup, I want to connect. So try to connect with people, try to connect with intelligent people on LinkedIn, try to connect with me. ठीक है, तो मेरे से भी connect कर सकते हो. If you have any good idea, we can work on the same idea. I have been working with 1-2 ideas of there are 2-3 second years I am working with on one such idea, or I am pitching that to few investors as well. ठीक है, so if you have some good idea, if you want to build your product, ठीक है, आप product बनाओ. And if you need market expertise, you can reach out to me, you can reach out to your seniors as well, जो market में startups कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, you can reach out to them. Okay. Few extra things कि अपने जब internship और placement पे जाओ उससे पहले definitely will have a session on that. ठीक है, you can reach out to me कि internship और placement के लिए क्या करना पड़ेगा. I'll provide you with the links. और ये कुछ चीजें होनी चाहिए कि मतलब एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स बना दो. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, मैं अगर यहाँ से इस सेशन के बाद अगर कोई इस सेशन की समरी मेरे से बोलेगा तो आई विल राइट दैट. फर्स्ट थिंग इज डीएसए पढ़ लो. डीएसए के लिए C++ पढ़ लो, जावा पढ़ लो या पाइथन पढ़ लो, जो भी आपको सही लग रहा है वो पढ़ लो. आई मोस्टली प्रेफर C++. सेकंड थिंग, इन सब में से कोई एक पार्ट सोचो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, इन सब में से कोई एक सेलेक्ट कर लो एंड फॉलो दैट.
जो आपको अच्छा लग रहा है, किसी में कम स्कोप नहीं है, किसी में ज्यादा स्कोप नहीं है. इफ यू आर बेस्ट एट व्हाट यू डू, you are best, you will get a job, you will have empty opportunity. ठीक है, किसी में अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, बट इट्स अप टू यू कि आपको क्या अच्छा लगता है. वेब डेवलपमेंट वाज समथिंग व्हिच एक्साइट्स मी. ठीक है, मैंने अपनी कॉलेज की वेबसाइट बनाई, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, तो वेब डेवलपमेंट वाज समथिंग व्हिच एक्साइट्स मी. ऐप डेवलपमेंट आल्सो एक्साइट्स मी. बस ये है. बट लेकिन उसके बाद मेरी इंटर लगी सैमसंग में. हाँ, ओके. So I got interned with Samsung Research Institute Bangalore. So there I was given machine learning data science का मेरा प्रोजेक्ट था, MLDS का प्रोजेक्ट था. Then I got to मुझे चांस मिला पाइथन पढ़ने में. I learned पाइथन पढ़ने का चांस मिला. ठीक है. तो इट्स अप टू यू कि व्हाट यू वांट. और उसके बाद फिर मेरे को वेब डेवलपमेंट और उससे थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, एंड आई मूव टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. सो इट्स अप टू यू. और आपको नहीं पता कि आपकी इंटर्न किस में लगेगी, आपको इंटर्न में क्या काम मिलेगा, प्लेसमेंट का काम लगेगा, आपको प्लेसमेंट में क्या मिलेगा काम. ठीक है, यू नेवर नो. ठीक है. एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, दैट फ्रेशर्स कैन नॉट बी चूजर्स. ठीक है, हम चूजर्स नहीं हो सकते. वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव असाइन्ड. ठीक है. Resources, as I have already told you that these are the resources. Okay. Coding Ninjas, you can go for Geeks for Geeks. Geeks for Geeks, you can refer for the text part. For courses, you can go for Coding Ninjas. Also, Coding Ninjas has its own platform called Code Studio. Okay, you can go for that. LinkedIn का मैं लिंक भेज देता हूँ. Tips for internship, how to get one. Tips for internship definitely करते हैं. ठीक है, तो मेरा यही तक था पार्ट. ठीक है, and thank you and all the best. Okay, now I would just give me a second. Now I would request Umang Sharma uh, to come up to turn on his mic and camera. And he's your alumni and he's placed at Microsoft. So hello Umang. Hello, am I audible? Yes, you are audible. So guys, if you have any queries, you can ask with Umang. Yes. Okay, so first of all, I would like to apologize because I can't turn on my camera right now. I'm struggling with poor network connectivity in my area. Okay. So, very good evening to everyone. I am very pleased to see 46 participants in this meeting who are here and they are showing interest and being part of the same college. I'm very excited today. So, first of all, a very brief introduction about myself. My name is Umang Sharma. And I am finally a student of computer science and engineering from NIT Jalandhar. I did internship at Microsoft in 2020 and now I am placed at Microsoft. So I will be joining the company next month. So आज I would like to share my internship interview experience with everyone. Because I can see बहुत सारे participants जो हैं यहाँ पर they are from first year and second year. So internship की जो companies हैं हमारे college में आती हैं तो वो बिल्कुल ही बाद में आती हैं. Just like जो second year के students हैं उनका भी summer break खत्म होगा and from the starting of August the companies will start coming to the campus. So it's very important for everyone to understand the process कि कैसे companies का general procedure होता है. So today I will be discussing specifically about Microsoft. So in 2019, August के starting में company visited our campus. So there were total 5 rounds for the internship. The first round was the coding round, जिसमें we were given 3 coding questions. So the coding questions were from easy to medium level, I would say. So if you have a very good practice of data structures and algorithms and you are a good problem solver, then I think that will be a cakewalk for you. But again, it is merit based because you will be competing with all the students of your batch. So again, you have to be very quick in solving the questions. वहाँ पे 3 questions थे and जो time था वो 90 minutes का था. So in the first round, I think around 60 students were selected out of all the students of CSE and ECE. That time IT was not there, but अभी IT भी है तो वो branch भी allowed होगी तो ज़्यादा competition होगा आप लोगों के लिए. So the first round was over. Then the second round was pen and paper round. It was a group play round जिसे हम कहते हैं.
तो वहां पर जो इन्विजिलेटर्स थे वो माइक्रोसॉफ्ट के ही एम्प्लॉयज थे, जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम आई थी वो इन्विजिलेटर थे. And we were given two questions and we have to write the solution on A4 sheet. तो जो दो questions थे, one was coding question, very like medium level coding question था. It was DP based coding question. And the second question was something which was new to me. मैंने उसकी चीज की कभी प्रैक्टिस नहीं की थी. एंड क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, माइक्रोसॉफ्ट वाज द फर्स्ट कंपनी टू विजिट, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी थी उस क्वेश्चन को आंसर करने में. एंड दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू सिस्टम डिजाइन. हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिला था कि हमें सर्च इंजन डिजाइन करना है एंड हमें 4-5 पॉइंट्स दिए थे जिसके बेसिस पर हमें अपना पूरा सिस्टम को डिजाइन करना. And again, as I've already told you all, the invigilators were the team from Microsoft. So we have to discuss our solution with the invigilators also. उसके basis पर भी marking थी. आफ्टर दैट मेरे को इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे सिस्टम डिजाइन का. सो शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे इतना नहीं पता था कि मैं बैकएंड के बारे में क्या लिखूं, सर्च इंजन के बारे में. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर इस टास्क में बोला गया है कि मुझे अपने जो इन्विजिलेटर्स हैं, आई हैव टू डिस्कस विद देम, so I must discuss with them something. So I started thinking, and मेरा ऐसा है कि जब भी मैं किसी सॉफ्टवेयर के बारे में सोचती हूँ, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचती हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये चीज दिमाग में आती है कि हाउ कैन आई मेक अ प्रोडक्ट जिससे कस्टमर के लिए उसे यूज करना बहुत इजी हो, उसकी यूआई मैं कैसी बनाऊं कि वो बहुत एक्साइट करे कस्टमर्स को. सो I started writing my answer in the same way, and मैंने इन्विजिलेटर को कॉल किया, अपने पास बुलाया, and I started discussing the approaches. So invigilator was quite impressed, but again I was not satisfied with my answer because I have already mentioned na, कि there were 4-5 points around which we have to frame the answer. So I was not able to write all the points correctly according to me, I think. But the next day the results came and I was selected for the technical interview rounds. So there were 2 technical interviews further. So the first technical interview, the DSA questions were asked. One question was related to, I think, binary search trees, and so many other questions were also asked, and those questions were related to the system design questions जो group play round में हमसे पूछे गए थे. उस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया. एंड सम क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू हाउ गूगल मैप वर्क्स और सो मेनी अदर एप्स व्हिच वी यूज ऑन रेगुलर बेसिस, हाउ दे वर्क. सो आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज इट माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू, एंड मैंने उसके पहले कोई मॉक प्रैक्टिस भी नहीं किए हुए थे. सो आई मैनेज टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. So few key takeaways from the interview was, जो मैं आप लोग को भी बताना चाहती हूँ कि mock interviews are really very important. आप अभी इंटरव्यूज कभी भी डायरेक्टली इंटरव्यूज फेस मत करिए, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू प्लान करिए, या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स भी आजकल अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट वेयर यू कैन शेड्यूल योर मॉक इंटरव्यूज. सो इट रियली हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. So this is first thing. The second thing which I learned that day, कि interviewers are very friendly. They want us to answer the questions. पहले मुझे ऐसा लगता था कि interviews are like the viva exams जो हमारे कॉलेज में होते हैं. But trust me guys, it is not like that. Interviewers are very friendly. वो चाहते हैं कि जो candidate आया है वो answer करे. So if you are stuck anywhere, you can always ask for help from the interviewer, and interviewer will definitely help you. तो इंटरव्यूअर ने फर्स्ट राउंड में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड आई सेड नो, मेरे को नहीं आता. तो उन्होंने मुझे उसी समय बताया कि इंटरव्यू में कभी भी जाओ तो नेवर से कि मुझे नहीं आता. यू शुड ऑलवेज ट्राई आंसरिंग इट, यू शुड ऑलवेज ट्राई सॉल्विंग इट, बिकॉज इन रियल वर्ल्ड व्हेन यू विल गो टू द कंपनी, प्रॉब्लम्स विल बी डेफिनेटली न्यू, जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी. तो अगर आप पहले बार में कह दोगे कि नो आई डोंट नो, सो डेफिनेटली डजंट शो यू अ ग्रोथ माइंडसेट. So this was about the first technical interview. Now coming to the second technical interview, that was purely technical. I would say there were 2 DSA based questions were asked. First was related to stack and second was related to queue. I think again इसमें मैंने अपने first interview से सीखा था कि never say no to anything, to any question asked by the interviewer, वो मैंने अपने second round of interview में instantly apply की. मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे क्वेश्चन पूछा एंड आई वाज राइटिंग द कोड ऑन पेपर.
मैं एक जगह अटक गई एंड आई वाज थिंकिंग फॉर अ मिनट और टू. सो इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि क्या वो क्वेश्चन चेंज कर दे, डू आई वांट टू स्विच टू अनदर क्वेश्चन. तो मुझे याद आया कि नो, आई हैव टू सॉल्व इट बिकॉज ये प्रॉब्लम है मेरे सामने, मुझे इसका सॉल्यूशन किसी भी तरीके से फाइंड करना है. सो आई सेड टू द इंटरव्यूअर, नो सर, आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इंस्टेंटली अगेन लाइक फिर उसने थोड़ा मुझे हेल्प किया इंटरव्यूअर ने, एंड देन आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली. So this was about technical round 2 of the interview and the key takeaway from my interview also. So I managed to clear the second technical round also. Then the last round, the fifth round, was the HR round. In HR round, I think nothing technical was asked. All the things were related to me, my hobbies, my passion, why I want to join Microsoft, why I joined NIT Jalandhar, why मैंने CSE choose की. इससे related questions थे, and some questions were related to my project in HR round also. So projects में there were no technicalities being asked in the project in HR round. बस उन्होंने मुझसे इस तरह की चीजें पूछी कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, so what are the difficulties you have faced, what are the challenges and how you have overcome them. और अगर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आपको चांस मिले उसमें और इम्प्रूव करने का, so what would you like to do in order to make it better. So I think these kind of questions are really very important when you are preparing for the interviews. Project based questions, these are very important. So this was all about the internship interviews, and then I was selected amongst all the 6 students who were selected from NIT Jalandhar. And then I did my internship at Microsoft 2020 in the year 2020, and unfortunately it was completely virtual. And then I received PPO from the company. PPO is pre-placement offer, जो internship के बाद companies interns को दे देती हैं, जिससे वो full time offer extend करती हैं. For your information. So few things I would like to add now. Like the scenarios are virtual these days, so you guys will be having virtual interviews. So virtual interviews में the complete procedure will be same, but in place of pen and paper round, you have to write code on you, like you can share your screen, or the interviewer might ask you to write code on a shareable document or anything which interviewer prefers. So in that case also, you don't need to write the code only, but you have to speak. Because जब हम सामने फेस टू फेस इंटरव्यूज में होते हैं, तो इंटरव्यू कैन सी योर एक्सप्रेशन, इंटरव्यूअर कैन सी योर एक्सप्रेशन, व्हाट आर यू थिंकिंग, ही और शी माइट जज. बट जब हम वर्चुअल सिनेरियोज में हैं, सो यू हैव टू स्पीक योर माइंड आउट. आप क्या सोच रहे हो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो भी आप को उसे इंटरव्यू को समझाना है, उसे बताना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सो दैट अ प्रॉपर कनेक्ट कैन बी मेंटेन बिटवीन यू एंड इंटरव्यूअर. Again, when you are writing code, so code को भी you need to explain to the interviewer, and after completing the code, आपने कोई भी question का code लिख दिया suppose आपने, then dry run is really very important. कि for example आप 1-2 test case आपको interviewer देगा, और you can take from yourself, तो आप उन्हें ड्राई रन करके चेक करिए इंटरव्यूअर को बताते बताते, so that he or she can have same path, same pace. So there were these were the few things which I had to discuss today. Now let me just check the. Okay, so ma'am, can non-CS branch student get internship? Definitely yes. When I did my internship at Microsoft, there were many students who were from chemical branch. There were many students who were from ECE branch also. ECE branch के तो हमारे कॉलेज से ही 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, and 2 from CSE. So chemical branches के भी students थे internship के दौरान, and some were from mechanical also. I know 1 or 2 students. So it is nothing like that कि आप अगर CS and IT के हो, then तभी आप लोगों को मिल सकती है opportunity. But yes, on campus में there can be barrier कि जैसे हमारे कॉलेज में सिर्फ CS and EC ही सिर्फ अलाउड था ड्राइव पर बैठना. बट अगर हम ऑफ कैंपस कंसिडर करते हैं, तो ओनली फ्यू कंपनीज हैव फाउंडेशन कि CS और IT के स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं. नहीं तो आई डोंट थिंक कि
कोई बाउंडेशन होती है. Anyone can apply, and if you are eligible, CGPA criterias होते हैं, then definitely you will get a test link if you have a good resume, and then you can proceed for the interviews. Okay, so any more questions? But now our college is IT. Opportunity for ECE will decrease. I don't think opportunities will decrease, but definitely competition ज़्यादा होने वाला है because number of students are more, and virtual scenario भी है, so we have to take care of that as well. तो opportunities बिल्कुल कम नहीं होंगी, but competition will be more. ज़्यादा prepare करना पड़ेगा and ज़्यादा confident होना पड़ेगा. Okay, any more questions? I don't see any questions coming up in the chat window. So yes, I think I'm done from my side. You guys can connect with me on LinkedIn or ask me doubts whenever you want. I'm always available for my juniors. Okay, so I'm done from my side. Handing over my mic to the host. Okay. Ma'am, do internship require coding as a must skill, or we can go for non-coding profiles? Okay, so I think coding is important because first round will be coding round only for every company. There can be a mixture of MCQs related to the core CSE core subjects or aptitude, but one coding question will be there. So I think if you are planning to go for SDE profiles, you should know coding definitely, because this is what you are going to do when you will get the job. आपको वहाँ जाके भी coding करनी है, products को design करना है. So it's important to learn coding skills. Ma'am, how did you practice competitive coding? Okay, so this thing I would like to share. मैंने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी CS रिलेटेड चीजें नहीं की थी, बिकॉज मेरी ब्रांच वाज नॉट कंप्यूटर साइंस, इट वाज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग. उसके बाद मेरी CGPA अच्छी थी एंड आई गॉट अपग्रेडेड टू कंप्यूटर साइंस. तो सेकेंड ईयर से ही मैंने देखना स्टार्ट किया कि व्हाट इज ऑल देयर इन CSE, मैं क्या क्या पढ़ सकती हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ. तो सो बेसिकली मैंने सिर्फ सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया. सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैं क्या करूं. मैंने बहुत सारे कभी मैंने कुछ डेवलपमेंट का ट्राई किया, कभी मैंने कुछ कोडिंग का ट्राई किया. मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी. सो देन आई स्टार्टेड, मैंने ये सोचा 1-2 महीने ऐसे स्ट्रगल करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं DSA पहले अच्छे से पढ़ूंगी. सो आई परचेज्ड वन बुक, इट इज वेरी गुड बुक, नरसिम्हा करुमंची. एंड उस समय मेरे जो हमारे कॉलेज का करिकुलम है उसमें भी ये चल रहा था साथ साथ, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू कोप अप विद इट. तो मैंने सबसे पहले DSA को स्ट्रॉन्ग किया. सो DSA की अगर मैं बात करूं तो हाउ आई वेंट थ्रू इट की मैंने डेटा स्ट्रक्चर वाइज स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले एरे को सिलेक्ट कर लिया, देन आई स्टार्टेड रीडिंग एवरीथिंग अबाउट एरे, एंड मैंने उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए फ्रॉम Geeks for Geeks, लीड कोड एंड सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स. सो data structure by data structure में चली. Then I completed my DSA in the 6-7 months में मैंने DSA को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया. बट अगेन जब इंटर्नशिप की बारी आई, जब ऐसा लगा कि इंटर्नशिप की कंपनीज अब आ जाएंगी इन दी मंथ ऑफ समर, जो मेरे समर के मंथ चल रहे थे, मेरी छुट्टियां चल रही थी, उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी उसके लिए. सो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एडवांस टॉपिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, बिकॉज अब तक जो भी मैंने किया था, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, सारा कुछ सेल्फ स्टडी पे ही बेस्ड था. सो आई टुक वन कोर्स फ्रॉम कोडिंग निंजास, कॉम्पिटिटिव एमिनेंस का, एंड दैट कोर्स आई थिंक इज रियली गुड कोर्स. आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको किसी कोर्स या प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है. उसमें मैंने 2 मंथ्स में कंप्लीट उस कोर्स को किया, एंड उससे मुझे काफी ज्यादा ऐसे फील हुआ कि यस आई एम रेडी, क्योंकि उसमें मैं टाइम बेस्ड प्रैक्टिस भी कर सकती थी, एंड उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स भी कवर थे, एंड उसमें बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट था, क्वेश्चंस का बहुत अच्छा कलेक्शंस था. तो आई रियली लव दैट कोर्स एंड आई ऑलवेज रिकमेंड टू एवरीवन जो भी मुझसे इस बारे में पूछता है. Okay, so ma'am, how's your interest gets diverted to computer science as being okay, instrumentation then. Okay,
So actually, my journey is quite different from everyone. So it would take a long if I start sharing my complete journey here. But yes, instrumentation and control was not my interest. I had other plans when I was in ICE branch, but I was trying hard to, perform well in academics so that I can upgrade myself to computer science and engineering, जिससे कि I can work in IT companies for SDE roles. बट अगर मेरी ब्रांच अपग्रेड नहीं होती, वो आईसी ही रहती, तो मैंने माइंड में एक और प्लान बना रखा था, तो मैं उस प्लान में जाती, बट माई इंटरेस्ट वॉज नेवर आईसीई. सो दैट इज इट. Okay, not getting LinkedIn. Okay, so I will try to share it in the chat box. So guys, I'm done from my side. If any other questions, please you can ask in chat box. Okay, so projects made. Okay, so I did 2 projects second year end hone tak when I sat for the internship interviews. So those two projects were Java applications, and the database was used was MySQL. So the projects were not very advanced kind of कि उसमें बहुत ज्यादा ML यूज हो रही है या AI यूज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था. The projects were very simple, but they have a very good impact. और उसका प्रैक्टिकल यूज भी था, एक रियल टाइम यूज भी था. माय ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी, तो उनको अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स की जरूरत थी. देयर वर 2 प्रोजेक्ट्स, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट मुझे दिए डेवलप करने के लिए. सो आई डेवलप दोज 2 प्रोजेक्ट्स एंड दोज वर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई डिड इन टिल सेकंड ईयर, एंड उन्हें ही मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया. Okay. Also need CP or only basic stuff? I think program manager की profile is entirely different from SDE जो मैंने अपनी internship के दौरान देखा है. They are not product developers, but they are product designers. So as far as I know, so I think CP की इतनी जरूरत नहीं होगी. एंड मोस्ट ऑफ द जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में देखे जो प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट में थे, देवर MBA guys. So I don't think CP is required. Okay, ma'am, did you stick to a single language and mastered it? Yes, definitely. I stick to C++ and I mastered it, and I feel very comfortable with C++ क्योंकि वो जैसे कि आपको पहले भी सर ने बताया था कि सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है. इट्स वेरी हैंडी, एंड वो सबसे पहले ही हमें करिकुलम में पढ़ाई भी जाती है C and C++. सो इसीलिए मैंने C++ को ही चूज किया. एंड 11th-12th में भी मेरी कंप्यूटर साइंस ही थी मेरा सब्जेक्ट, तो वहां पे भी मैंने C++ पढ़ रखा था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट C++ में ज्यादा था. Okay, so wait a minute guys, let me just open my LinkedIn so I can share my profile link with you. Okay. Okay, so I'm just dropping the link here. Yes, so you all can connect me here. Yeah, hello. Hello, Umang, am I audible?
So guys, do you have any more questions to ask from Umang? You can ask. You can ask in the chat box. Or I think Umang has provided his LinkedIn ID, and so her LinkedIn ID. So you can connect with her, and you can ask in the chat box in the on LinkedIn with her. Okay, I have provided my LinkedIn ID. If you want to connect with me, we can. It would be really great. We can connect and we can have a chat as well. If you have any doubts regarding anything internship placement, you can ask Umang. You can ask me. Okay. So I think we should wrap up this session, and it was really great to have you all attend this session. Thank you, Umang. Thank you very much for being with us, and solving the doubts of your juniors. Pleasure all mine, Abhishek. Thank you. Okay, thank you, guys. Thank you, everyone, and. I think we should. Tushar, anything more you want to say? Or should we end the session now?